Hello everyone. Today I have taken unit 3 of your practice book, that is the compound sentence. In my previous video I have discussed about simple, compound and complex sentences. Hope you all understand it very well. Today we will do worksheet 1, page number 27. Read 3 sentences taken from the unit People at Work from my English reader. Put a tick against a sentence that contain one subject and one predicate. यानी कि सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वहाँ पर आपने टिक करना है. आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक. मैं गलती करना नहीं चाहता. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. यू मे टिक हियर. I have solved them all my life, but I still make mistake. This is compound sentence. So you will not mark it. I have a few pieces of glass. This is simple sentence, tick it. I sold the ring for the right price and I made £2 on the picture. This is compound sentence, so you will not mark it. So simple sentence when there is one subject and predicate, or you can say when there is a subject and a verb, that is also simple sentence. We have already discussed it in previous video. In the sentence given above, sentence 2 and 4 consist of two parts. I have sold them all my life. I still make mistakes. I sold the ring for the right price. I make 2 points on the picture. In sentence 2, the parts are joined by the conjunction. कौन सी conjunctions use हुई है? But. और in sentence 4, and use हुई है. Each of the clauses contains a subject and a predicate and makes complete sentence. So it is a सेंटेंस और इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. क्लियर? जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो सिंपल सेंटेंस है, और जहाँ पर कंजंक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है. वर्कशीट 2. वर्क विद योर पार्टनर. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट एस मतलब simple sentence and CS matlab compound sentence. So you have to find out. For it's getting late. Simple sentence. The students won the match and the coach was happy. Compound sentence because there is a conjunction. Should I write a letter or should I make a phone call? Compound sentence. That is a beautiful picture. Simple sentence. My parents are away to Delhi but they will be back on Monday. Compound sentence. Because but is conjunction. She was nervous but she faced the audience. Compound sentence. Is it stolen or have you lost it? Compound sentence. Or is conjunction. The weather was warm but it was rather humid. Compound sentence. My computer is out of order. Sentence. The girl was happy but later missed her mother. Compound sentence. So this is very easy. You have to know which sentence is simple and which is compound sentence. Now worksheet 3. This is for your. This should be done by you. आपके करने के लिए है ये. Work in pairs. Find out a few things about your partner. Get him/her to answer a few questions in order to know more about him/her. A few questions and answers have been given as examples. Build up the rest yourself. Take turns to ask questions and ask your partner to write down the answers for each. Use the conjunctions given in brackets to frame your answers. Use the same conjunctions for your sentence also. अब देखिए आपको क्या करना है. क्वेश्चन पुट करने हैं और आपको आंसर देने हैं, और ब्रैकेट में क्या करना है, आपको कंजंक्शन देनी है कि कौन सी कंजंक्शन यूज़ की है. आपने पूछा व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्क. कंजंक्शन है एट. क्या करोगे अगर पार्क में बहुत सारा पैसा मिल जाए? आई वुड कीप सम एंड गिव द रेस्ट. अब एंड आपने यूज़ कर ली कंजंक्शन. एंड गिव द रेस्ट टू द पुलिस. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल. थोड़ा पैसा तो खुद रखूँगा और थोड़ा पुलिस को दे दूँगा. फिर आपने क्या क्वेश्चन किया?
स्कूल के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट इट, और इसमें आपने क्या करना है, बट कंजंक्शन यूज़ करनी है। और स्कूल के बारे में आपको क्या अच्छा नहीं लगता, तो आप लिख देंगे आई लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बट आई डिसलाइक, जो भी आपको डिसलाइक करते हैं, बीच में आपको कंजंक्शन यूज़ करनी है बट। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन, व्हाट विल यू डू इफ़ यू विन अ कैश प्राइज वर्थ ₹1,00,000। अब कंजंक्शन है और, अगर आपको 1,00,000 का कैश प्राइज मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो आपके पार्टनर ने उत्तर दिया, आई विल कीप इट विद मी और आई विल डोनेट टू पुअर पीपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हैं, व्हाट विल वी डू इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आपको कंजंक्शन, कुछ भी कंजंक्शन दे दो, बट दे दो, एंड दे दो, बिकॉज दे दो, तो आपको उसी तरह से क्वेश्चन बना के यहाँ पे कंप्लीट करना है और इसे खुद करना है। तो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स यूजिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आप इजी यूज़ कर सकते हैं, बट, और, बिकॉज, दैट, एंड, जो आपको ठीक लगती है। ठीक है। वर्कशीट 4, now pictures are given. What you have to do, get into groups of 3 in the boxes given below. Write the names of at least 3 professionals. Write down things they have to do if they want to be successful in their field. Use and, but, and, or. ये दिए हुए हैं, प्रोफेशन दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है, ऊपर जो कंजंक्शन है इनमें से कोई भी कंजंक्शन यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट इज गिवन एन एथलीट, खिलाड़ी। He can races but he has no practice hard. He must eat well and get proper sleep. He can join a gym to keep fit or exercise on the field on his own. Next है डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं, आप बॉक्स में डॉक्टर लिखेंगे। अ डॉक्टर, he must be well qualified and sincere. एंड यूज़ किया हमने कंजंक्शन, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। ही गिव्स मेडिसिन्स और प्रिस्क्राइब इट, या तो वो खुद मेडिसिन देता है या लिख के देता है। ही इज़ अ फ्रेंड और काउंसलर, वो मरीज का, पेशेंट का फ्रेंड भी हो सकता है या काउंसलर, उसको सलाह देने वाला भी हो सकता है। COUNSELLOR, काउंसलर। नेक्स्ट इज टीचर। अब टीचर के बारे में लिखिए, अ टीचर इज़ ए फ्रेंड बट ही शुड मेंटेन डिसिप्लिन। फ्रेंड तो होना चाहिए लेकिन उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। He must prepare his lesson in advance and make it interesting. उसे अपना लेक्चर जो है एडवांस में बना लेना चाहिए और इसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। He should be well qualified and honest towards his profession. अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना चाहिए। लास्ट इज पुलिसमैन। He must फाइंड रॉबर्स एंड थीव्स, चोर डाकुओं को पकड़ना चाहिए उसे। ही मस्ट बी ब्रेव एंड अलर्ट, एक्टिव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। अलर्ट, ALERT। ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो आप कोई और भी जो आपको लगे, लेकिन कंजंक्शन आपको यूज़ करनी है, कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, बिकॉज वी आर doing the chapter the compound sentence, so it is very important that you should know about the conjunction. तो आपको conjunctions के बारे में पता होना चाहिए और conjunction को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस फॉर्मेट करने हैं। तो पेज 30 आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। यू जस्ट रिवाइज इट, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो है उसे ध्यान से कर लीजिए। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को आपका इंग्लिश रीडर का टेस्ट लेंगे, यूनिट 1 का। आई विल टेल यू पेजेस इन गूगल क्लासरूम, तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। टिल देन टेक केयर।